Hello students, welcome to Real Entertainment. This is Sachin Dubey and today's session is going to be about physics. जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं. अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचाओ. मेक श्योर दैट यू नो शेयर दिस वीडियो, मेक सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज like at the same time. Today's session is going to revolve around the chapters that we have covered already and certain do's and don'ts while you write the physics paper. Now, I, as a matter of fact, know that physics is actually not a favorite subject of many of you because it has numericals, derivations, and whatnot. But then, of course, we have to, accept the fact and still appear for the exam. जैसे कि हम क्लासरूम में हमेशा किया करते हैं, कंसेप्ट को पकड़ के रखते हैं, राइट, और उसके बेस पे सब कुछ करते हैं. आज भी हम सेशन में वही करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो आपके चैप्टर्स में है वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लें. ट्राई टू एंश्योर that each and every concept, no matter how small it is, which is important from exam point of view, is covered here, right? We'll be dealing with chapters like force, work, energy and power, refraction through plane surface as well as the lenses part, right? Now, talking about the very first chapter, which is force, वहां पे जो concept है सबसे पहला, that is moment of force, which by the way is also called as torque. So what is moment of force or torque? It is the reason that objects rotate about a particular point. मान लीजिए ये एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, इसको यहां पे हमने पाइवोट कर दिया, किला मार दिया, फिक्स कर दिया, और यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं. वी आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम हियर. देन इट इज वेरी ऑब्वियस द ऑब्जेक्ट विल रोटेट लाइक दिस. आई नो इट इज वेरी ऑब्वियस, बट टॉर्क कैलकुलेट कैसे होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कैसे होगा? हम लोग लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे लाइन ऑफ फोर्स पे. ये हो गया आर, राइट? सो आर इंटू एफ, टॉर्क is basically r into f. In future, when you go to 11th standard, you realize that this is actually a vector which is r bar cross f bar, और उसका मैग्नीट्यूड आता है r f sin theta, where theta is the angle between r vector and f vector. But right now we need not go to that depth. As of now हमको इसको r into f ही समझना जरूरी है. Why? Because r is the perpendicular distance of the line of force from point of pivot and f is nothing but the force, right? So ये गया torque. इसका for very obvious reasons unit क्या आएगा? Newton meter. Newton for the force and meter for the distance or r, right? So this is the SI unit of torque. Now having understood the concept, जो questions आपको आते हैं, particularly जो numericals आपको आते हैं, वहां पे आपको नेट टॉर्क, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स ढूंढना होता है, या फिर बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा, ये ढूंढना होता है. तो वहां पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, व्हेन आई से इक्विलिब्रियम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज नो नेट टॉर्क. व्हेन वी से बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, वी से देयर इज नो नेट टॉर्क. सो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो indicates equilibrium. And what does this mean? It means कि moment of force anti-clockwise should be equal to moment of force clockwise. Moment of force anti-clockwise should be equal to moment of force clockwise. Now for your understanding, whenever you are mentioning moment of force anti-clockwise, you take it as positive, and whenever you are mentioning moment of force clockwise, you take it as negative. क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं हमेशा, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं. दैट इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क. मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव हियर इज कॉल्ड एज कपल. अब कपल क्या सिचुएशन है जहां पे देयर इज वन बॉडी एंड देयर आर टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड देयर लाइन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट कंपल्सरीली. दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम होके नहीं चलेगा. आई एम ट्राइंग टू से हियर कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, सो दिस इज वन फोर्स F, दिस इज अनदर फोर्स F. इसको हम कपल सिचुएशन नहीं बोलेंगे. व्हाई? बिकॉज इनका लाइन ऑफ फोर्स अलाइन कर गया, ये बॉडी घूमेगी नहीं. लेकिन अगर सिचुएशन ये है, या फिर सिचुएशन ये भी है जहां पे वी हैव टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, राइट,
with some distance between them, okay, then that is a couple. So couple is basically a combination of two forces equal in magnitude, opposite in direction, which are causing rotation, about a particular point, जिसको आप axis बोल लो, axis बोल लो, जो भी बोलो, right? Point of pivot बोल लो. तो then and only then it is called as couple. और couple का basically formula क्या है? Moment of couple. It is F into 2D or D into 2F, which is one and the same, where D is this distance as well as this distance. यहां से यहां तक का डिस्टेंस D है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी D है. इस केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोमेंट ऑफ कपल बोलेंगे. इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट होना जरूरी है, और दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ फोर्स अलाइन होके नहीं चलेगा. देन इट इज कॉल्ड एज कपल. This chapter also talks about something called as uniform circular motion. उस टर्म को अगर मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूं तो उसकी शुरुआत होती है सर्कुलर मोशन से, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो सर्कुलर होना जरूरी है. इट हैज टू गो अराउंड द पर्टिकुलर सेंटर विद अ फिक्स्ड रेडियस, और उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होना चाहिए. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पार्ट टॉक्स अबाउट circular path, and uniform circular motion मतलब constant speed. So अगर constant speed के साथ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, constant speed के साथ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, लेट अस से ये O है, ये R है, और बॉडी कॉन्टिन्यूसली घूम रही है, एंड स्पीड इज थ्रू आउट v से ज्यादा नहीं, v से कम नहीं, थ्रू आउट सेम स्पीड से अगर बॉडी घूम रही है, देन वी रेफर टू एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और जब कभी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो वो हर इंस्टेंट पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है टुवर्ड्स द सेंटर. हर इंस्टेंट पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है टुवर्ड्स द सेंटर. इस फोर्स को हम बोलते हैं centripetal force. The meaning of the word centripetal is center seeking force or towards the center, and उसकी जो वैल्यू है वो है mv² by r. न्यूमेरिकली अगर आपको सेंट्रिपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है, द फॉर्मूला इज mv² upon r, मास इनटू स्पीड का स्क्वायर अपॉन द रेडियस. ओके, सो वी कवर्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, वी कवर्ड कपल, वी कवर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया. दीज आर द मेजर थिंग्स इन दिस चैप्टर दैट यू हैव टू नो बी थरो विथ. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज बेसिकली वर्क पावर एंड एनर्जी. सो वहां पे इट ऑल स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. वर्क इज डन ओनली व्हेन, strictly only when there is some force and that causes some displacement which is not equal to 0. किसी फोर्स का होना जरूरी है और उस फोर्स को कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कॉज करना है जो नॉन जीरो है, नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा. उसके तीन सिनेरियोज आ जाते हैं. सो W इज एक्चुअली इक्वल टू F bar dot S bar. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आता है W इज इक्वल टू Fs cos थीटा इस फॉर्मूले से, जहां पे F इज फोर्स, S is displacement, and theta is the angle between force and displacement. So in that case we have three scenarios. एक पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन और एक जीरो वर्क डन. पॉजिटिव वर्क डन कब है? जब थीटा जीरो है. मतलब क्या? फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. वर्क डन विल बी एफ एस cos जीरो, बिकॉज थीटा जीरो है. cos जीरो 1 होता है, सो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वहां जाते हैं. ये सिचुएशन क्या है? जहां पे थीटा इज 180. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है कि उनके आपस का एंगल क्या हो जाए? 180 हो जाए. सो फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस cos of 180. नाउ cos 180 is -1, so W becomes minus Fs, negative of F into S. And this is the situation where theta is 90. What I am trying to say कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
का अलाइनमेंट ऐसा हो कि आपस में एंगल क्या है 90 है, सो वर्क डन विल बी Fs cos 90. cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो ये तीन सिचुएशंस हैं वर्क डन के, एक है पॉजिटिव वर्क डन, एक है नेगेटिव वर्क डन और एक जीरो वर्क डन. पॉजिटिव वर्क डन तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 है. नेगेटिव तब जब वो अपोजिट है, और 0 जब वो परपेंडिकुलर है. दैट इज हाउ यू बेसिकली गो अहेड विद वर्क डन. और वर्क डन से ही हमको एनर्जी के सब फॉर्मूले मिलते हैं, बिकॉज वी समहाउ से एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी होगी तभी वर्क डन होगा, एनर्जी नहीं है तो वर्क डन होना पॉसिबल नहीं है. इसलिए वर्क डन का और एनर्जी का दोनों का ऐसा यूनिट भी सेम है, इट इज जूल. सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. वहां पे वैसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बट हम लोग मेजरली मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, जहां पे देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स विच आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. मेजरली ये दो एनर्जीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का रीजन अलग अलग है. सो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू मोशन. अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. और पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करें, सो इट इज ड्यू टू शेप, साइज, हाइट, लोकेशन पर्टिकुलरली, राइट. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के ई इक्वल्स हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट multiplied by velocity का square upon 2 will give you kinetic energy, while potential energy is m into g into h. मैं थोड़ा और स्पेसिफिकली बता दूं तो दिस इज नॉट सिंपली पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, ग्रेविटी इन्वॉल्व है. व्हाई आई एम पॉइंटिंग दिस आउट, बिकॉज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अलग है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अलग है, राइट. पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग होगा, पर हमारे रेफरेंस में इस समय mgh इज एन फॉर्मूला, बिकॉज हम मेजरली ग्रेविटी ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पे mgh फॉर्मूला विल डू अस, राइट. नाउ ke का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, p का फॉर्मूला mgh. ये दोनों जानने के बाद हमको टोटल एनर्जी, ये कौन से समझ में आता है, बिकॉज टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, विच इज बेसिकली mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर. अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ऐसा जानना जरूरी क्यों है, बिकॉज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं चैप्टर में, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत रिपीटेडली काम आता है. वो क्या बोलता है, इट सेज दैट द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. मतलब पूरे जर्नी में एक ऑब्जेक्ट को लिया, ग्राउंड से फेंका, सर्टेन वेलोसिटी से फेंका, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा. क्यों कम होगा, बिकॉज वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, ग्रेविटी. धीरे धीरे कम होगा, एक पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, रुक करके वहां से वापस नीचे आएगा. इस पूरे जर्नी में आप कहीं भी कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो और वहां पे p प्लस के लिखा लो, वो हमेशा सेम आएगा. आप नो मैटर आप कहां नीचे देख रहे हो, बीच में देख रहे हो, टॉप पे देख रहे हो, मिडवे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, हर पॉइंट पे द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सेम. ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. इट सेज टी रिमेन्स कांस्टेंट. सो ये जो सम है, ये जो एडिशन है, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम आएगा, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है. सो दैट इज अबाउट एनर्जी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देयर फॉर्मूले, राइट. बट इस चैप्टर में एक और बात जो देखने लायक है, दैट इज पावर. सो व्हेन यू टॉक अबाउट पावर, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल पावर है क्या. सो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन. पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन. सो वर्क डन कम्स इन न्यूमरेटर, टाइम कम्स इन डिनोमिनेटर. सिचुएशन ले लेते हैं, दो लोग हैं, राइट. दोनों को सेम काम दिया, W इज सेम फॉर बोथ. एक को ज्यादा समय लगे, एक को कम समय लगा, कम समय में उसने काम कर दिया, वैसे उसका पावर ज्यादा, इसको कम टाइम लगा. इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. जिसको कम टाइम लगा उसका पावर ज्यादा. अब वापस सिचुएशन लेते हैं, दोनों को सेम टाइम देते हैं काम करने के लिए. एक ने ज्यादा काम कर लिया उस टाइम में, एक ने कम काम किया, तो जिसने ज्यादा काम किया उसका पावर ज्यादा, विच मीन्स पावर इज प्रोपोर्शनल टू वर्क डन. इनको कंबाइन करके हम इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं कि पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. पावर का SI यूनिट जूल पर सेकेंड जो है, इट इज कॉल्ड एज वैट, WATT, जिसको आमतौर पर W से इंडिकेट करते हैं, राइट. पावर का फॉर्मूला इज वर्क डन अपॉन टाइम. पावर को हम थोड़ा सा अलग एरेना में डिस्कस करेंगे. अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो हमें बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं. पावर इज V इंटू आई, पावर इज V स्क्वायर अपॉन R, पावर इज I स्क्वायर इंटू R, बट दैट इज अ डिफरेंट, completely different scenario altogether.
एज ऑफ नाउ पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, इतना जानना हमारे लिए जरूरी है। यूनिट्स ऑफ पावर अलग अलग हैं, देयर इज हॉर्स पावर, देयर इज किलोवाट, मेगावाट, मिलीवाट, वो आपको ध्यान से पढ़ना और उनको कैसे कन्वर्ट करना है यूनिट्स को आपस में, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द सेकंड चैप्टर मेजरली, पावर, एनर्जी, वर्क डन, टाइप्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स एंड द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। मूविंग फॉरवर्ड, रिफ्रैक्शन टू सरफेस की बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन से शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स, जो लाइट का एक एरिया है पढ़ाई का, हम बोलते हैं कि देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स, सो देयर इज रिफ्लेक्शन, देयर इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट का बाउंस बैक होना रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का बेंड होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन मिरर है जो हम 9th में पढ़ चुके हैं, और रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन लेंस है जो हमको 10th में पढ़ना है। सो 9th का करिकुलम was about reflection and mirrors, 10th is about refraction and lenses. So refraction की definition ऐसी है, light ray bends when it travels from one medium to another, this phenomenon is called as refraction। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट जाएगा तो वो बेंड होगा, इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेंडिंग का तरीका क्या है, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, और अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमको स्नेल्स लॉ का जो सेकेंड पार्ट है उससे फिजिक्स शुरू होती है, उससे न्यूमेरिकल शुरू होता है। वो क्या बोलता है, इट सेज दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। पहले इस तरह से ये लॉ पुटअप हुआ कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। लेकिन उसी को आगे चल के स्नेल्स लॉ में कन्वर्ट किया गया ये बोल के कि साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, या अग्रीड, बट व्हाट इज दैट कांस्टेंट? It is refractive index of second medium with respect to the first medium. It is refractive index of second medium with respect to the first medium. Talking of refractive index क्या है? Refractive index is basically a numerical value, a number which tells us कि कौन सा मीडियम किससे डेंसर है, किससे रेयर है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो टेबल दिया है बुक में वो पूरा रटने की जरूरत है, हमको हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है बॉस। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके रटने की जरूरत नहीं है। एयर का 1 है पता होना चाहिए, और एयर इज द रेयरेस्ट मीडियम इन आर रेफरेंस, बाकी सारे मीडियम उससे डेंसर ही हो जाते हैं, राइट। सो जब कभी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर बोलता हूं, हाउ डू आई से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। अगर मैं ये एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, हाउ डू आई राइट दिस? म्यू ए बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओके। और इसको ढूंढने का, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? वीबी अपॉन वीए। व्हाट डज वीबी मीन? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी। व्हाट डज वीए मीन? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला व्हिच विल हेल्प यू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। अब यहां पे जानने देखने वाली बात क्या है कि अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं ऑफ एनी मीडियम, लेट अस से m, सो उसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ओके। रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू क्या बात कर रहे हैं, एयर या फिर वैक्यूम। और दूसरी बात जाननी जरूरी वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम 3 into 10⁸ meters per second, 3 into 10⁸ meters per second। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम 3 into 10⁸ meters per second है। इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। एवरीथिंग एल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल हैज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको टेबल रखने की जरूरत नहीं, आपको अलग अलग मीडियम के वेलोसिटी ऑफ लाइट रखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दैट्स अबाउट स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन एज अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको यूज करके आपकी बुक में अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ, देन देयर इज शिफ्ट, ओके, देन देयर आर डिफरेंट प्रिज्म्स इन्वॉल्वड जहां पे आप लाइट को बेंड कराने की कोशिश करते हो। लेकिन इन सबको जो साथ में जोड़ता है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ व्हाट डज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन मीन? सबसे पहले ये जान लो कि जो फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये स्ट्रिक्टली एक ही सिनेरियो के लिए बना है, और वो सिनेरियो क्या है कि जब लाइट ट्रैवल कर रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन एंड ओनली देन दिस कांसेप्ट इज वैलिड। सो व्हाट हैपेंस इज कि मान लो ये एक मीडियम है सेपरेटिंग टू मीडियम्स, बाउंड्री है सेपरेटिंग टू मीडियम्स, ये डेंसर है और ये रेयर है।
तो लाइट शुरू में डेंसर टू रेयर जब जाएगा तो ऑफ कोर्स रिफ्रैक्ट होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन पार्शियली रिफ्रैक्ट होता है और पार्शियली क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वंस अगेन लाइट क्या हो रही है, पार्शियली रिफ्लेक्ट पार्शियली रिफ्रैक्ट, और बढ़ा दिया तो रिफ्रैक्शन एंगल और बढ़ जाता है, वापस लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट पार्शियली रिफ्लेक्ट। ऐसे आप करते जाओगे, यू विल रीच अ पॉइंट जहां पे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस, रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन गया, 90 बन गया। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो जब कभी आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट भेज रहे हो, as you increase the angle of incidence, the angle of refraction goes on increasing, and at each and every point partially refraction is taking place, partially reflection is taking place. But जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाता है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस, ध्यान से देखो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इट ग्रेजेस द सरफेस, देन दैट रेस्पेक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। एंड व्हाई सो, बिकॉज अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाया तो लाइट रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं, पूरी की पूरी क्या होगी, अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंपल्सरीली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में ही होता है, और तभी होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ जाए। और ग्लास एयर इंटरफेस के लिए, मान लो ये ग्लास है और ये एयर है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज्यादा है तो TIR होना तय है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज्यादा, इसका मतलब क्या, क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, 42 आ गया। तो 42 से ज्यादा अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सो TIR इज फिक्स्ड। इसी फिनोमेना पे, इसी फैक्ट पे हमने प्रिज्म के अलग अलग डिविएशन देखे थे, जहां पे लाइट को एक बार 90 डिग्री से शिफ्ट किया जा रहा है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इमेज निकाला जा रहा है, एक बार लाइट का डिविएशन 60 डिग्री निकाला गया है यूजिंग इक्विलैटरल प्रिज्म, एक बार लाइट का डिविएशन लेस देन 60 किया है यूजिंग 30, 60, 90। फिर आपको ये बताया कि कौन से दो केसेस में TIR नहीं होगा इन 30, 60, 90 प्रिज्म। उसमें एक स्पेशल केस बताया कि किस सिनेरियो में 30, 60, 90 में भी TIR हो सकता है। सो यू नीड टू लुक एट दोस डायग्राम्स वेरी केयरफुली, आई वुड रेकमेंड प्रैक्टिस देम, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेकंड हाफ, जहां पे आपको न्यूमेरिकल्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको न्यूमेरिकल्स में रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको न्यूमेरिकल्स में शिफ्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और उसके बहुत इजी फॉर्मूला जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिराइव किए हुए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज बेसिकली लेंसेज। ये चैप्टर जो ये पार्ट है आपके ऑप्टिक्स का, फिजिक्स का, ये इजी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। इजी इस वजह से बिकॉज फॉर्मूला बहुत कम है। ओके, देयर इज लेंस फॉर्मूला, देयर इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, एंड देयर इज पावर फॉर्मूला, एंड देयर ऑल इजी, राइट। 1 by v minus 1 by u is 1 by f, m is h2 upon h1, or let us say I by o which is also equal to v by u, then there is power which is 1 upon focal length, जहां पे फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, राइट। ये इजी है। डिफिकल्ट क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन समझना इतना आसान नहीं, मैं दोनों चीजें डिस्कस करता हूं यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो बिफोर यू गो टू द न्यूमेरिकल्स, आपको लेंसेज का बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कॉन्वर्जेस एट वन पॉइंट। कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, बिकॉज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस लाइट डाइवर्जेस अवे फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट। सो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस दिखाता है इसलिए कॉन्वर्जिंग, कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंस दिखाता है इसलिए डाइवर्जिंग, ठीक है। वहां पे कुछ डेफिनेशंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडिया ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ऑल ऑफ दैट पैरामीटर्स एंड डेफिनेशंस व्हिच यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली। Moving to the next most important part, which is nothing but the solving part. So formula that we have here are the lens formula, which says 1 by v minus 1 by u is 1 by f. Then there is magnification formula, which is m equals I by o. Some people say h2 upon h1, size of image upon size of object is also equal to v by u. And then there is power formula, P is equal to 1 upon focal length, जहां पे फोकल लेंथ का मीटर में होना बहुत जरूरी है। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो याद से उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ही आपको पावर जो है उसके ट्रू यूनिट्स में मिलेगा, which is डायोप्टर, ठीक है। दिस इज इजी पार्ट, इसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि v को, u को, f को कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है ये अपने को पता नहीं होता, और वहां पे न्यूमेरिकल में आप मार खा जाते हो। थोड़ा सा रिवाइज को करते हैं। सो बुक में क्या बोल दिया साइन कन्वेंशन में इजीली कि भाई इसको आप नंबर लाइन की तरह ट्रीट कर लो, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मान लो, तो एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट इज नेगेटिव, एवरीथिंग ऑन द राइट इज पॉजिटिव,
एवरीथिंग अबव इज पॉजिटिव, एवरीथिंग बिलो इज नेगेटिव, बट ये इतना आसान नहीं है. दैट इज नॉट हाउ इजी इट इज, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट. सो कैसे शुरू करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेफ्ट में ही रखते हैं, ओरिजिन के ऑब्जेक्ट कभी राइट में नहीं रखते. ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेफ्ट में ही रखते हैं, लेंस के कभी राइट में रखते नहीं है, जिस वजह से u इज ऑलवेज नेगेटिव. u को कभी भी पॉजिटिव नहीं लेना है. अब v पे आ गई, v इज इमेज डिस्टेंस. तो उसमें सिनेरियो है, अगर आपका इमेज रियल है, और रियल है तो कंपल्सरी क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, तो आपका v का वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव. और अगर आपका इमेज वर्चुअल है तो कंपल्सरी क्या होगा, इरेक्ट होगा, तो v की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव. सो v इज पॉजिटिव इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड v इज नेगेटिव इफ इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. h1 की बात करते हैं, विच इज ऑब्जेक्ट साइज और हाइट. h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट को हमेशा हम सीधा रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम उल्टा नहीं रखते. लेकिन अगर h2 की बात करोगे आप, तो व्हेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, नाउ सिंस इट इज इन्वर्टेड, यहां पे क्या आ जाता है, नेगेटिव. वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंस इट इज इरेक्ट, यहां पे h2 क्या आ जाता है, पॉजिटिव. आप h2 बोल लो इसको, या फिर आप इमेज साइज बोल लो इसको, h1 बोल लो, या फिर ऑब्जेक्ट साइज बोल लो, दिस वन द सेम थिंग, राइट? फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव अगर आपका लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है. फोकल लेंथ इज नेगेटिव अगर आपका लेंस क्या है, कॉन्केव है. क्यों? कॉमन सेंस. लेंस लिया, यहां से रे आया, यहां जाएगा, तो फोकस किधर आया, फोकस यहाँ पे राइट में आया, बिकॉज रे हम लोग कहां से कहां लाते हैं, लेफ्ट टू राइट ही लाते हैं. कॉन्केव की बात की हमने, लेंस लेफ्ट टू राइट लाया, यहां गया, फोकस किधर आया, ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में आया. तो सिंस यहाँ पे फोकस लेफ्ट में आया, फोकल लेंथ नेगेटिव, यहाँ पे फोकस राइट में आया, फोकल लेंथ पॉजिटिव. दैट इज द डेप्थ ऑफ इट, डेप्थ ऑफ फोकल लेंथ. हमको ये पता चलना चाहिए फोकल लेंथ पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है. सो दिस इज इजी, दिस इज वेयर इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. ये समझना ज्यादा जरूरी है, राइट? हैविंग सेड दैट, हमने कंसेप्चुअली काफी सारी चीजें कवर कर ली सारे चैप्टर्स में से. मेजरली द इंपॉर्टेंट वन जहां पे न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट है, जो समझना जरूरी है. इसके बावजूद there are certain things you need to understand, or you have doubt, you can definitely ask in the comment section. We will try to get back to you on the same. अब थोड़ा सा पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर लिखते वक्त क्या चीजों पे ध्यान दोगे, क्या चीजें अवॉइड करोगे. तो मेरा यार सबसे पहला और मेजर इंस्ट्रक्शन तो ये है कि क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, पेशेंस रख के. हम लोग कई दफा ना पेपर फास्ट खत्म करने के चक्कर में, या फिर पेपर में टाइम कम ना पड़े इस डर से पेपर अटेम्प्ट करते वक्त बहुत रश में होते हैं, हरी में होते हैं. उससे होता यह है कि हम लोग क्वेश्चन कई बार ठीक से पढ़ते ही नहीं है. कहां स्टेट बोला है, कहां डिफाइन बोला है, कहां पे एक्सप्लेन बोला है, राइट? वो हम ध्यान से देखते नहीं है. हमको जो क्वेश्चन के कीवर्ड्स मिलते हैं, उसका हमारे दिमाग में जो आंसर का ओरिजिनल लिखना शुरू कर देते हैं. द वेरी फर्स्ट इनपुट फ्रॉम माय एंड इज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, मे बी रीड इट ट्वाइस. ठीक है? उससे पहला तो ये होगा कि सिली मिस्टेक हट जाएगा. सिली मिस्टेक्स इज बेसिकली नॉट समथिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू नाउ. दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आप फिजिक्स का पेपर लिख रहे हो, तो आप जो आगे क्वेश्चन में चॉइसेस है, देयर आर सम कंपल्सरी क्वेश्चंस, देयर आर सम चॉइस क्वेश्चंस, उसको ध्यान से देखते चलो. पेपर खत्म होने के बाद ये रियलाइज ना हो आपको कि अरे यहाँ पे मुझे 3 ही लिखने थे, मैंने 4 लिख दिया, मेरा टाइम चला गया और एक कंपल्सरी क्वेश्चन रह गया. ऐसा ना हो, उस पर फोकस करो. पूरे पेपर में इस बात पे बहुत ध्यान रखना कि आप SI यूनिट्स का ही इस्तेमाल करोगे. नॉन SI यूनिट्स में आंसर्स आर नॉट एंटरटेन्ड इन फिजिक्स. मान लीजिए मैंने आपको कहीं पे लेंथ पूछा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है, और आपने लिखा दिया कि यार हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 6000 सेंटीमीटर. नो, मुझे मीटर्स में आंसर चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, राइट? वही स्पीड आपको पूछा था, आपने निकाल दिया किलोमीटर पर आवर में. नो, द आंसर इज एक्सपेक्टेड इन मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है? सो ऐसा यूनिट्स में आंसर लिखने की पूरी कोशिश करना. डायग्राम्स के बारे में मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे थोड़ा आलस बोल लो उसको, इग्नोरेंस बोल लो उसको, यू गो फॉर फ्री हैंड डायग्राम्स. आप होगे अपने आप में बहुत क्रिएटिव होगे और आप में बहुत स्किल होगा, टैलेंट होगा, बट व्हेन इट इज अबाउट राइटिंग एन एग्जाम, यूज पेंसिल, यूज स्केल, राइट? एंड देन यू गो अबाउट इट, राइट? मेक श्योर कि आप ठीक से उसको ड्रॉ भी करोगे, लेबल भी करोगे जहां जहां जरूरी है. डायग्राम्स को हल्के मत लो, दे फेच यू मार्क्स समटाइम्स, आल्सो दे हेल्प यू राइट द आंसर प्रॉपर्ली. देन कम्स राइटिंग द फाइनल आंसर. न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त फिर किसी भी गिवन सिचुएशन में आप जब फाइनल आंसर हाईलाइट कर रहे हो, कई बार होता है कि हमने कैलकुलेशन किया, सो या v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आ गया, वहीं पे बॉक्स को छोड़ दिया. v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर in front of the lens. Negative is in front and positive is behind. Negative is in front and positive is behind. So the image is formed at 20 centimeter in front of the lens. ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो फाइनल आंसर आप हमेशा लिखने की आदत डालो. मेक श्योर दैट यू नॉट स्ट्रेच योर आंसर अननेसेसरली. ऐसा कई बार होता है कि बच्चों को लगता है कि मुझे आंसर नहीं आ रहा, क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, तो मुझे इस बारे में जो पता है उसको मैं तानते बैठता हूँ. जितना इंग्लिश आया सब ठूस दिया आंसर में, जस्ट टू मेक इट लुक लेंदी एंड फोर्स द टीचर टू गिव यू मार्क्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई तेरा फर्स्ट टाइम 10th है, वो टीचर 10 साल से 10th का पेपर ही चेक कर रहा है. सो ही और शी नोज व्हेन यू आर ट्राइंग टू फूल हिम अराउंड. डोंट डू दैट. ओके, ट्राई टू कीप योर आंसर्स रेलेवेंट. यूज कीवर्ड्स, डोंट अननेसेसरली स्ट्रेच देम. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर दैट यू फाइंड सम टाइम टू रीचेक द पेपर. पेपर को रीचेक जरूर करो ताकि आप अपने छोटे मिस्टेक्स को जो हाईलाइट कर सको. And having said all of that, make sure that you follow a sequence while you are solving questions, numericals particularly. पहले formula, फिर substitution, फिर calculation, and then final answer. Formula state करना important है. आपने formula state ही नहीं किया, directly solving start कर दी, तो आपका मार्क्स वहां पे जाने के chances बहुत ज्यादा हैं. आंसर्स में की वर्ड्स होने जरूरी हैं. लॉज और डेफिनेशंस आप अपने मन से अल्टर नहीं कर सकते. जस्ट बिकॉज आपके इंग्लिश बहुत ठाए हैं, आपने आंसर मॉडिफाई कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा. आपको टेक्स्ट बुक में दिए स्टेटमेंट्स को स्टिक करना जरूरी है. किसी बंदे ने, किसी साइंटिस्ट ने बोला है ना, वो तो उसने जो बोला है वैसे के वैसे लिखना बहुत जरूरी है. आप अपने वर्ड्स में नहीं उसको मॉडिफाई कर सकते. दैट्स नॉट एन एसे और लेटर टू pour your expressions into it. Make sure that you stick to keywords, and definitions and laws are to be written just as they're in the textbook. So that was all from my end about these chapters and these concepts. Hope this helps you write the exam better. And still, if you have some queries and requirements, do mention them in the comment box. Thank you.